Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 11th biology, and the chapter is plant kingdom, right? So basically guys, in the last video of the chapter we have talked about the algae, right? And we have also seen the various types of algae too, right? So guys, today we are going to start the new topic, which is bryophyte, right? So let's begin with the today's topic, guys. Basically guys, we are taking NCERT as our base, right? So I will be explaining you each and every part in a very detailed and short video, right? So that you don't have any confusion regarding those topics. So the first thing that we need to be mentioned over the bryophytes are that they are mostly found in moist shaded areas, यानी कि ऐसी हिली एरियाज पे बेसिकली ये पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर यानी मॉइस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड जनरली इफ अगर हम कहें कि व्हाट आर द बेसिक प्लांट्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स, so they will be the mosses and liverworts, right? Mosses and liverworts are the basic good examples for bryophyte category, right? One very important thing to be mentioned over here is that bryophytes are called as the amphibians of plant kingdom, right? It is a very big statement which needs to be remembered because generally question इसी statement से आते हैं that which category is called as the amphibian of plant kingdom, or you can say why the bryophytes are called as the amphibians of plant kingdom, right? Various questions can be from this topic, right? So we have to just understand why the basic term is given to them, right? So this is because they can live in soil also, but for the sexual reproduction they are dependent on water, right? So it means that they can survive in water as well as land like the amphibian organisms too. So that's why they are called as the bryophytes, as the category of amphibians of plant kingdom, right? And if we talk about certain areas or habitat, कि किस habitat में, मैंने आपको area बताया था moist shaded area, right? Area and habitat में different है. एरिया है कि जैसे हम प्लेस है, कोई एक XYZ प्लेस है, हम वहाँ पर रह रहे हैं, सो वहाँ पे भी अलग अलग इकोसिस्टम होगा, एक लैंड होगा, वाटर होगा, एयर होगा, वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स विल बी देयर, राइट? एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ organism will survive in those ecosystem, right? So area is about the total land, while the habitat is the particular area, like the fish, right? So if we say that fish is living in that area, it means कि जो भी एरिया है सारे habitat को इंक्लूड करके उसकी बात हम करें. And if we say that fishes generally survive in watery habitat, इसका मतलब है कि they prefer, or you can say they are mostly found in the water, right? So same wise अगर हम bryophyte की बात करें कि वो कौन से habitat में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो है damp, humid and shaded localities, यानी कि ऐसी locality जहाँ पे humidity ज़्यादा हो, dampness हो यानी कि water content moisturization काफ़ी ज़्यादा हो, right? अब देखें कि जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो एल्गे से बहुत डिफरेंस होती है. लाइक कैसे डिफरेंट होती है? लाइक दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स इन देम, राइट? एंड बेसिकली जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें दो स्पेशल चीज़ें इसमें नोटिस करनी है जो कि एल्गेज में नहीं होती. सो वो दो चीज़ें हैं कि इनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और दूसरी चीज़ इनमें प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है, राइट? सो दीज टू आर द बेसिक थिंग जो इनको एल्गे से एकदम डिफरेंट बनाती है, राइट? अब ये जो एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मल्टीसेलुलर राइजोइड्स कहते हैं, राइट? मल्टीसेलुलर राइजोइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये अटैचमेंट के लिए एक सरफेस होते हैं जिससे कि हमारे ब्रायोफाइटिक प्लांट्स
अटैच होते हैं. फाइन. और बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें नोटिस करने की ये है कि दे डोंट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, राइट. इसका मतलब है कि इनमें रियल की लीव्स, रूट्स और स्टेम्स नहीं होती. दे आर जस्ट लाइक अ क्लम्प. फाइन. सो ऐसी एक कंडीशन भी होती है इनमें कि कुछ प्लांट्स बेसिकली कुछ ऐसे फॉल्स स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं जो कि रूट की तरीके होते हैं, लीफ की तरीके होते हैं या स्टेम के तरीके होते हैं. बट इन रियलिटी दे डोंट हैव रियल रूट्स फॉर देमसेल्व्स, राइट. नाउ आई विल से अबाउट द प्लांट बॉडी टाइप, यानी कि हैप्लोइड है या डेप्लॉइड है. तो हमारा जो प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट की, इट इज हैप्लोइड. हैप्लोइड मीन्स a number of chromosomes, right? And these are generally the gamete producing plants, so they are called as gametophytes, right? Sex organs generally इनमें multicellular होते हैं, यानी कि इनमें large number of cells present होती हैं, and they must be differentiated into various other sub-organs also. Fine. मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं, जो कि हमें हमारा बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स का प्रोडक्शन करता है. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गैमीट जो ब्रायोफाइट में डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सो यू विल आंसर इट एज एंथेरोजोइड्स. और अगर पूछे कि किस ऑर्गन से डेवलप होता है या फिर आपसे ये पूछे कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सो यू विल बी सेइंग एंथेरिडियम, राइट. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कियोगैनोमियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क टाइप का होता है. यानी कि एक यू मस्ट हैव सीन द फ्लास्क इन योर एक्सपेरिमेंट रूम, राइट. द स्वॉलो बॉटम एंड द नेक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एज अबव. सो उस टाइप का कुछ ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फ्लास्क टाइप का. और ये एज लाइक ह्यूमन सिंगल एक एग प्रोड्यूस करता है. फाइन. एज मैंने बताया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे प्रेफर रहते हैं, या फिर ये दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन वाटर, राइट. सो जो मेल गैमीट होता है एंथेरोजोइड्स, वो वाटर में प्लांट रिलीज कर देता है, राइट. और जब वो प्लांट रिलीज कर देता है, देन विद द फ्लो ऑफ वाटर करेंट्स वो आता है फीमेल गैमीट यानी कि आर्कियोगोनियम के कांटेक्ट में, एंड आफ्टर दैट फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है. फाइन. एंड वी हैव अर्लियर रेड अबाउट दैट जाइगोट गोज मल्टीपल रिडक्शन डिवीजन, राइट, जिससे कि हमारा एम्ब्रायो और का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है. ब्रायोफाइट्स में जाइगोट में डिवीजन नहीं होता है तुरंत. फाइन. सो ये एक मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, राइट. एंड दीज सेप्रोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग. दे आर जनरली डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स फॉर देयर नरिशमेंट. अब जो इन स्पोरोफाइट्स की सेल्स होती हैं वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि माइटोसिस उसमें होता है. एंड ड्यू टू दिस माइटोसिस दे प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स, राइट. एंड यही स्पोर्स हमारा जर्मिनेट होते हैं और इनके जर्मिनेशन से हमारा गैमेटोफाइट प्लांट डेवलप होता है कैटेगरी का. Some of bryophytes also have little economic importance, right? जैसे mosses होते हैं. These mosses provide herbaceous animal the food for them. Birds और animals को ये food के लिए यूज़ किया जाता है. और जो स्पाइगम का स्पीशीज़ होती है, एक मॉस होता है, वो हमारा एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. फाइन. और जो लाइकेंस होते हैं मॉसेस के साथ, जो लाइकेंस होते हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंस फॉर इकोलॉजिकल पर्पस. डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं एंड बेसिकली
depend or you can say they increase the soil fertility also, right? और soil erosion को भी ये prevent करते हैं. So these are the economical importance जो कि हमारे bryophytes के होते हैं, right? So basically bryophytes को हम divide करते हैं 2 categories में. पहला liverworts and दूसरा mosses, right? So now we will see both of the categories. Firstly हम लोग बात करेंगे liverworts की. Fine. So they are generally found at moist shady habitats, right? Moist shady habitats कहाँ पे हो सकती हैं हमारे किस एरिया में? Generally banks of streams के जो banks होते हैं या फिर आप river के banks पे भी कभी कभी notice कर सकते हो, right? Bark of trees और जो फॉरेस्ट के होते हैं घने वहाँ पे. सो और डैम्प सॉइल में तो जनरली ये फाइंड ही होंगे. सो दीज वर द एरियाज. और हैबिटेट क्या थी? मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, राइट? लिवरवर्ट की बॉडी जो होती है वो थायलॉइड की होती है. थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है, जैसे मर्चेंटिया में थायलॉइड प्रेजेंट होता है. सो लाइकवाइज द सेम the other plants also prefer the thylakoid. Fine. So the जो थैलिस होता है वो डोर्सोवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के फॉर्म में, राइट? जो लीफी मेंबर्स होती हैं ये वो उनमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, राइट? और ये हमारे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट रहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो होता है इनमें लिवरवर्ट्स में, दे प्रेफर बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, राइट? सो इस थैलस को हम जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंट होता है. सो वो फ्रेगमेंट्स में वो थैलस डिवाइड हो जाता है एंड ईच थैलस गेट डेवलप्ड इनटू द अदर लिवरवर्ट. या फिर एक ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं गैमा में, राइट? तो सो दीज स्ट्रक्चर गैमा जो होता है ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स होती हैं, राइट? और ये डेवलप होती है हमारी बेसिकली एक गैमा स्कप्स में जो कि थैलस पे हमारा लोकेटेड होता है. फाइन. और जब ये गैमे मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है और एज अ न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने लगता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं या तो सेम थैलस पे डेवलप होंगे या फिर डिफरेंट थैलस पे, राइट? सो जो स्पेरोफाइट्स होते हैं वो फूड स्टिया और कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं. एंड कैप्सूल्स के अंदर मियोसिस के बाद हमारा स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और इसी स्पोर से हमारे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, राइट? सो बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक चीज़ बताइए, नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो दीज वर द थैलस. नाउ अब हम देखेंगे कि मॉसेस क्या होते हैं, राइट? अब देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट स्टेज होती है मॉसेस की लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफाइट से स्टार्ट होती है, राइट? जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटोनीमा कहते हैं, राइट? जो कि हमारे डायरेक्ट स्पोर से डेवलपमेंट की स्टेज होती है और बेसिकली ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फ्लेसमेंटिशियस स्टेज होती है. यानी कि जो इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो हमारा प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो ग्रीन ब्रांच टाइप ऑफ प्लांट होता है जिसमें फ्लामेंटल स्टेज प्रेजेंट होती है, राइट? सेकेंड स्टेज को हम लोग कहते हैं लीफी स्टेज, राइट? जिसमें हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलपमेंट होता है एज अ लेटरल बड. फाइन. सो लेटरल बड जो होता है वो हमारे सेकेंड स्टेज में डेवलप होता है. एंड जो ये अपसाइड स्लेंडर एक्सेसेस होती हैं यानी कि जो ये लीव्स होती हैं वो अपसाइड डाउन की डायरेक्शन में अटैच्ड होती है प्लांट्स में. बेसिकली जो ये प्लांट्स होते हैं मॉसेस ये हमारा मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू सॉइल में अटैच्ड रहते हैं और इस सेकेंड स्टेज में हमारा सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलपमेंट होता है.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉस में फ्रेगमेंटेशन और बेडिंग के थ्रू, बेसिकली का सेकेंड प्रोटोनेमा स्टेज में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स एंटीडिडिया एंड एकोगोमा यानी मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो टूट छूट के एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बेसिकली जो जाइगोट होता है वो हमारा डेवलप हो जाता है स्पैरोफाइट पे। स्पैरोफाइट जिसमें हमारा फूट, सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होता है, राइट। और इन्हीं कैप्सूल में हमारा स्पोर्स प्रेजेंट होता है, बेसिकली व्हेन द स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर द मियोसिस डिवीजन इन जाइगोट, फाइन। और ये मॉसेस हमारा इलेबोरेट कर लेते हैं लेबरवर्थ के साथ एंड दे फॉलो द सेम मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, फाइन। सो कॉमन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फ्यूरेनिया, गैमनम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ mosses. So it was so easy to understand, right? There was nothing difficult was there in the topic. So if you have any doubt, please let me know in the comment section. And thank you so much for watching the video. And if you like the video, just do like, share and comment. And also subscribe to my channel if you're new to my channel. And also press the bell icon so that you can get tuned with a new latest update, right? So thank you so much guys, and till then, bye bye, take care.